Welcome to the yet another session on the subject computer networks. The topic of today's discussion is channelization protocols. Channelization protocols are the third and the final type of the multi-access protocols. In our previous lectures, we have already discussed the concept of random access protocols and controlled access protocols. Under random access protocols, we have discussed Aloha, CSMA, CSMA-CD, CSMA-CA. Under controlled access protocols, we have discussed reservation protocols, polling protocols, and token passing protocol. So today we will be discussing channelization protocols. In channelization protocols, we will be discussing frequency division multiple access, time division multiple access, and code division multiple access. So let's start the discussion with the concept of channelization. Channelization is a multi-access method in which available bandwidth of a link is shared in time, frequency, or through code between different stations. And there are three basic channelization protocols that are frequency division multiple access, time division multiple access, and code division multiple access. तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये एक्चुअली ये जो चैनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है क्या. तो अब मल्टी एक्सेस प्रोटोकॉल्स का जो मेन टारगेट है दैट विल रिमेन द सेम. हमारे पास एक शेयर्ड मीडियम है या हम इसको बोले अ शेयर्ड चैनल and multiple computers are connected to this shared channel, or we can say multiple stations are connected to this shared channel. Let's assume that machine number 1, 2, 3 and 4, they are connected to this shared channel. Now our target is to give the access to all the users and to avoid the collision or detect the collision in the channel. तो इससे पहले रैंडम में हमने ये देखा कि किसी भी मशीन के पास डेटा हो ट्रांसमिट करने के लिए वो कर सकता है. तो उसमें हमने फिर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करी इन कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस. उसके बाद हमने डिस्कस करे कंट्रोल्ड एक्सेस प्रोटोकॉल्स, जिसमें ये नहीं कि किसी भी स्टेशन के पास डेटा है और वो सेंड कर सकता है. सारी चीजें कंट्रोल्ड मैनर में होंगी. अब चैनलाइजेशन में क्या होगा, हम ये जो शेयर्ड चैनल है it will be assigning to the multiple, means we will be giving the permission to multiple user to transmit the data. but वो जो shared channel पे access है वो कैसे मिलेगा, या तो वो टाइम के बेस पे मिलेगा या फ्रीक्वेंसी के बेस पे मिलेगा या मिलेगा कोड के बेस पे. इट मींस या तो हम टाइम को स्लॉट्स में डिवाइड कर देंगे और डिफरेंट टाइम स्लॉट्स दे देंगे डिफरेंट मशीन्स को, या इस चैनल की जो फ्रीक्वेंसी है हम उसको डिवाइड कर देंगे अमंग ऑल द स्टेशंस लाइक दिस. और द थर्ड कॉन्सेप्ट इज कोड. we will be assigning the different codes, different unique codes to different machine and will give them access to transmit the data. So it means या तो टाइम डिवाइड होगा among multiple users, या फ्रीक्वेंसी डिवाइड होगी, या कोड असाइन होगा. a unique code will be assigned to all the computers. तो इस बेसिस पे हम अब यूजर्स को एक्सेस देंगे, स्टेशंस को एक्सेस देंगे ऑन द शेयर्ड चैनल, और हम कोशिश करेंगे कि कोलिजन ना हो. तो पहला जो मेथड है दैट इज कॉल्ड FDMA, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस. तो फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस में क्या होगा, अगेन द केस विल रिमेन द सेम. multiple computers or multiple stations will be connected to the same shared channel like this. And what we will do, let's assume that the total bandwidth of this shared channel is 500 megahertz. So what we will do, we will divide this frequency
among all the connected station। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टेशन नंबर 1 को हमने फ्रीक्वेंसी दे दी 0 to 99 मेगाहर्ट्ज, और इसी तरह से स्टेशन नंबर 2 को हमने फ्रीक्वेंसी दे दी लेट्स से 110 to 209 मेगाहर्ट्ज। So this way the total frequency bandwidth, the total frequency of the channel will be divided among all the connected stations। और आप देख सकते हो कि हमने एक फ्रीक्वेंसी और दूसरी फ्रीक्वेंसी के बीच में कुछ गैप छोड़ा है, लाइक 100 से लेके 109 मेगाहर्ट्ज तक किसी को असाइन नहीं किए। नाउ दिस इज कॉल्ड गार्ड फ्रीक्वेंसी। अब ये गार्ड फ्रीक्वेंसी हम यूज करते हैं ताकि इंटरफेरेंस ना हो दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज में। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एफडीएमए। The total frequency of the channel will be divided among all the connected stations। और हर स्टेशन की फ्रीक्वेंसी अलग होगी तो कोलिजन का कोई चांस ही नहीं है। अब टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस में क्या होगा, फिर से केस वही रहेगा, मल्टीपल कंप्यूटर्स और मल्टीपल स्टेशंस विल बी कनेक्टेड टू द सेम लिंक, सेम चैनल, लाइक दिस। नाउ व्हाट वी विल डू, we will not divide the frequency। Let's assume that again the frequency of the channel is 500 megahertz। Now what we will do, we will divide the time into slots। Let's assume that the duration of the slot is 5 milliseconds। So it means we will allocate the first 5 milliseconds to the station number 1 and he will get the frequency of 5 megahertz and it will be able to transmit the signal। Then the second slot means 6 to 10 milliseconds, this will be allocated to 2, he will get the entire 500 megahertz to transmit the data। So it means now we have divided the time instead of the frequency in the time division multiple access। And in third, code division multiple access, what we will do, we will assign the unique codes to each and every station, connected station, and every station can transmit the data at the same time। No need to divide the frequency, no need to divide the time, only a unique code will be allocated to each and every connected station and they will be allowed to transmit at the same time and there will be no chance of collision। So CDMA is really an amazing technique और इसमें आपको कुछ नहीं करना पड़ रहा, ना आप फ्रीक्वेंसी डिवाइड करोगे ना टाइम डिवाइड करोगे और स्टिल ऑल द स्टेशंस will be able to transmit at same time। तो चलिए लेट्स डिस्कस these all these types of channelization protocols one by one। The first one is frequency division multiple access। तो जैसा हमने पहले डिस्कस करा, now as you can observe in the diagram, we have time on x-axis and frequency on y-axis। Now we have divided the frequency among multiple users। Every user has its unique frequency and multiple users can transmit at the same time using the different frequencies and there will be no chance of collision। So in FDMA, the available bandwidth is divided into various frequency bands। Each station is allocated a band to send its data। This band is reserved for the station for all the time। तो इसमें वही दिक्कत फिर से आपको आएगी, आपके पास मान लीजिए थी फ्रीक्वेंसी f और आपके 3 स्टेशंस कनेक्टेड थे विद द चैनल, उसको आपने डिवाइड कर दिया f1, f2 और f3 में। Now let's assume that f2 के the frequency band f2 is allocated to the station number 2, 3 is allocated to the station number 3 and f1 is allocated to station number 1। तो फ्रीक्वेंसी को हमने डिवाइड कर दिया। मान लीजिए स्टेशन नंबर 2 के पास डेटा ही नहीं है ट्रांसमिशन के लिए एट द गिवन टाइम, तो ये जो फ्रीक्वेंसी है क्योंकि हमने इसको स्टैटिकली एलोकेट कर दी है स्टेशन 2 को, तो ये वेस्ट हो जाएगी, ये फ्रीक्वेंसी यूज ही नहीं होगी। और मान लीजिए स्टेशन नंबर 1 के पास बहुत सारा डेटा है ट्रांसमिशन के लिए, बट वो सिर्फ अपना ही फ्रीक्वेंसी बैंड यूज कर सकता है, दैट इज ओनली द 1/3 ऑफ द टोटल फ्रीक्वेंसी अवेलेबल।
और जैसे जैसे ये यूजर इंक्रीज होते जाएंगे फ्रीक्वेंसी बैंड भी इंक्रीज होते जाएंगे, और जितने स्टेशन के पास, ज्यादा स्टेशन के पास डेटा ट्रांसमिशन के लिए नहीं होगा, उतनी ही फ्रीक्वेंसी वेस्ट हो जाएगी. बट द बेसिक कॉन्सेप्ट इज द टोटल फ्रीक्वेंसी इज डिवाइडेड अमंग द कनेक्टेड स्टेशन, और स्टैटिकली हम उनको एलोकेट कर देंगे. नाउ दिस एफडीएमए इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम एफडीएम, क्योंकि एफडीएम का कॉन्सेप्ट भी हमने पहले डिस्कस किया था. एफडीएम इज अ मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक that works on the layer 1 physical layer, and FDMA is a multi access protocol that works on the layer number 2. तो दोनों में बहुत डिफरेंस है. FDMA एक टेक्निक है और FDMA एक मल्टी एक्सेस प्रोटोकॉल है. The next is time division multiple access. Now in time division multiple access we will not divide the frequency, instead we will divide the time among multiple connected users. Now हमारे पास लेजेंड्स फिर से सेम है. ऑन एक्स एक्सिस वी हैव टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑन द वाई एक्सिस. नाउ वी आर नॉट डिवाइडिंग द फ्रीक्वेंसी. द फ्रीक्वेंसी इज कांस्टेंट टू ऑल द यूजर्स, बट वी हैव डिवाइडेड द टाइम इनटू स्लॉट्स. So on time t1 we are assigning the entire band to the station 1, on time 2 we are assigning the entire band to the station 2, and on time 3 we are assigning the entire frequency band to the station number 3. So in this way multiple computers will be allowed access to the shared channel, और कोलिजन के कोई चांस नहीं है, क्योंकि एक टाइम पे पूरा चैनल एक ही कंप्यूटर के पास, एक ही मशीन के पास अवेलेबल है. लेकिन फिर से वही दिक्कत है. अब सपोज कीजिए आपने टाइम T2 जो है दूसरा स्लॉट है असाइन किया है स्टेशन 2 को, और उसके पास कोई डेटा ही नहीं है ट्रांसमिशन के लिए, तो फिर से वो जो स्लॉट है दैट विल बी वेस्टेड. नाउ TDM इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम TDM, क्योंकि TDM मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक है और TDMA है मल्टी एक्सेस प्रोटोकॉल. नाउ द नेक्स्ट and the most interesting type of the channelization protocol is CDMA, code division multiple access. अब कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस में ना तो हम टाइम डिवाइड करेंगे ना फ्रीक्वेंसी डिवाइड करेंगे, हम एक यूनिक कोड एलोकेट कर देंगे हर कनेक्टेड कंप्यूटर को, एंड एवरी कंप्यूटर विल बी अलाउड टू ट्रांसमिट द डेटा एट द गिवन टाइम. तो अब होगा क्या इसमें? Now let's assume that we have 4 computers connected to the shared channel, and these 4 stations are named as 1, 2, 3, 4. Now what we will be doing, we will be assigning the unique code to every computer, to every station connected to the shared medium. So C1 is the unique code for 1, C2 is the unique code for 2, C3 is the unique code for 3, and C4 is the unique code for station number 4. Like this. Now there are 2 properties of the code assignment. अब किसी मशीन को भी, किसी स्टेशन को भी आप जब यूनिक कोड असाइन करोगे तो वो यूनिक कोड असाइन करने की 2 प्रॉपर्टीज हैं. पहली प्रॉपर्टी, इफ वी मल्टीप्लाई ईच कोड बाय अनदर वी गेट 0. अगर आप एक स्टेशन के कोड को, यूनिक कोड को दूसरे स्टेशन के यूनिक कोड के साथ मल्टीप्लाई करोगे, मींस now this C1 is the code for station number 1 and C2 is the unique code of station number 2. Now if you will multiply C1 with the C2, the answer should be 0. And the second property is, if we multiply each code by itself, we will get the answer as total number of stations. तो इट मीन्स अगर आप C1 को C1 के साथ ही मल्टीप्लाई करते हो तो उसका आंसर क्या होगा? नंबर ऑफ स्टेशंस दैट आर कनेक्टेड टू द सेम लिंक. तो अगर 4 कनेक्टेड हैं तो आंसर इसका होना चाहिए 4. अगर 8 कनेक्टेड हैं तो इसका आंसर होना चाहिए 8. लाइक दिस. तो जितने भी, अगर आप सेम कोड को मल्टीप्लाई करोगे अपने ही साथ तो उसका आंसर क्या होना चाहिए? द नंबर ऑफ स्टेशन कनेक्टेड टू द लिंक.
तो आप जब हर मशीन को कोड असाइन करोगे तो ये कोड दो प्रॉपर्टीज को, इसकी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। जैसे 1 को आपने असाइन किया C1, 2 को असाइन किया C2, तो इस C1 की ये प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए और ये प्रॉपर्टी भी ही होनी चाहिए। अगर इनमें से कोई प्रॉपर्टी भी वायलेट हो रही है तो यू नीड टू चेंज द कोड। तो आपको कोड चेंज करना पड़ेगा, और चेंज करके उसको कैसा करना पड़ेगा ताकि वो दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर सके। तो अब आप देख सकते हो हमने किया क्या, वी असाइंड अ यूनिक कोड टू एवरी स्टेशन। तो इन दिस केस वी हैव 4 स्टेशंस दैट आर 1, 2, 3 एंड 4। तो हमारे पास 4 स्टेशंस हैं। अब ट्रांसमिशन कैसे होगी, हर मशीन के पास अपना डेटा है। D1, स्टेशन नंबर 1 के पास है D1 डेटा, 2 के पास है D2, 3 के पास D3 और 4 के पास D4। और हर स्टेशन का अपना एक यूनिक कोड है। C1 हो गया 1 का, C2 हो गया 2 का, C3 हो गया 3 का, C4 हो गया 4 का। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल मल्टीप्लाई द डेटा एंड द कोड। हम हर स्टेशन पे क्या करेंगे, जो भी उसके पास डेटा होगा ट्रांसमिशन के लिए उसको मल्टीप्लाई कर देंगे विद इट्स यूनिक कोड। तो D1 C1 स्टेशन नंबर 1 पे हो गया, स्टेशन नंबर 2 के पास है डेटा 2 और उसका यूनिक कोड है C2, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एंड सो ऑन। इसी तरह से स्टेशन नंबर 3 पे D3 इंटू C3 और स्टेशन नंबर 4 पे D4 इंटू C4। ये कैलकुलेशन करने के बाद हम सभी आंसर्स को क्या कर देंगे, प्लस, और जो आंसर आएगा उसको हम ट्रांसमिट कर देंगे लाइक दिस। तो अब मान लीजिए हमारे पास 4 स्टेशन थे, हमने पहले स्टेशन को ये कोड असाइन कर दिया, दूसरे को ये असाइन कर दिया, तीसरे को ये और फोर्थ को ये। तो अब आप चेक कर सकते हो ये दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करना चाहिए। एक तो अगर आप C1 को C1 के साथ ही मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर कितना आना चाहिए, क्योंकि 4 स्टेशन की बात हो रही है 4। अगर आप C1 को C2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आना चाहिए 0। तो चलिए फॉर एग्जाम्पल हम C1 को C1 के साथ मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। ऑब्वियसली आप इसको इसके साथ ही मल्टीप्लाई करोगे तो 1 इंटू +1 दैट विल बी +1, 1 इंटू +1 फिर से 1, 1 इंटू +1 1, 1 इंटू +1 1। तो सभी +1 हो गए। अब इसको सॉल्व कर लो, चारों +1, तो आंसर विल बी 4। तो अब हम मल्टीप्लाई करते हैं C1 को C2 के साथ, 1 इंटू 1, दोनों +1 है तो +1, +1 इंटू -1, so the answer will be -1, +1 इंटू +1, answer will be +1, +1 minus into -1, the answer will be -1. So +1 minus 1 0, 0 plus 1 1, 1 minus 1, the answer is 0. So it means ये कोड दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं। आप इसको इसी के साथ मल्टीप्लाई करोगे C2 को C2 के साथ तो आंसर फिर से आना चाहिए नंबर ऑफ स्टेशन। इसको भी कर लेते हैं। तो 1 1 इंटू 1 +1 इंटू +1 +1। अब देखते हैं -1 इंटू -1, so minus minus plus 1 into 1 1, +1 into +1 +1, -1 into -1 +1, minus minus plus, so 1 plus 1 plus 1 plus 1, answer is 4। तो इस तरह से आप हर कोड को चेक करोगे। अगर हर कोड को अपने साथ ही मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आना चाहिए टोटल नंबर ऑफ स्टेशन, और अगर एक कोड को दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आना चाहिए 0। अगर किसी कोड में ये दोनों चीजें सेटिस्फाई नहीं हो रही तो उस कोड को आपको चेंज करना होगा, और ऐसे चेंज करना होगा कि उसकी अपनी मल्टीप्लिकेशन से नंबर ऑफ स्टेशन आंसर आए और किसी और के साथ मल्टीप्लाई करने से 0 आंसर आए। तो चलिए अब ये सारी चीज को अंडरस्टैंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। और एक चीज आपको और ध्यान में रखनी है इसमें, और वो चीज क्या है, इफ अ स्टेशन नीड्स टू सेंड 0 बिट
इट एनकोड्स इट एज -1। अगर किसी स्टेशन ने 0 सेंड करना है ना, तो उसको इनकोड करेगा एज -1। अगर उसको 1 ट्रांसमिट करना है, वो उसको एनकोड करेगा एज +1। और अगर कोई चैनल आइडल है, मतलब फ्री है, उसने कोई ट्रांसमिशन नहीं करनी, तो वो उसको एनकोड करेगा एज 0। सो 0 एनकोडिंग फॉर 0 बिट, +1 एनकोडिंग फॉर बिट 1, एंड आइडल के लिए एनकोडिंग रहेगी 0 की। तो चलिए अब एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। तो अब इस एग्जांपल में देखिए, हमारे पास 4 स्टेशंस हैं, 1, 2, 3 एंड 4। कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हर स्टेशन को एक यूनिक कोड असाइन कर दिया। तो हमने जो पिछली एग्जांपल में करा था, सेम यूनिक कोड हमने हर स्टेशन को एलोकेट कर दिया, असाइन कर दिया। जैसे स्टेशन 1 का यूनिक कोड क्या है, +1 +1 +1 +1। यूनिक कोड सी, स्टेशन 2 का यूनिक कोड है +1 -1 +1 -1। और यूनिक कोड है स्टेशन 3 का +1 +1 -1 -1। और स्टेशन नंबर 4 का यूनिक कोड है +1 -1 -1 +1। आप देख सकते हो कि ये चारों के चारों कोड यूनिक हैं, कोई भी कोड एक दूसरे के साथ मैच नहीं हो रहा। So it means this is the code for station 1, unique code. This is the unique code for station 2. This is C3, code 3, unique code for station 4, and this is the unique code for station number 4। 3 और 4 के लिए अपने अपने। तो अब the station number 1 wants to transmit 0। तो हम पहले बात कर चुके हैं, 0 को आप कैसे इनकोड करोगे, -1। और 1 को आप इनकोड करोगे +1। और आइडल को आप कैसे इनकोड करोगे, 0। इट मींस आप कुछ भी ट्रांसमिशन नहीं करना चाहते। तो ऑब्वियसली स्टेशन नंबर 1 वांट्स टू ट्रांसमिट 0, तो उसकी एनकोडिंग क्या होगी, -1। स्टेशन 2 वांट्स टू ट्रांसमिट -1 अगेन, तो उसकी फिर से 0 वो ट्रांसमिट करना चाहता है, 0 की एनकोडिंग हो गई -1। स्टेशन नंबर 3 कुछ भी ट्रांसमिट नहीं करना चाहता, वो आइडल है, तो उसकी एनकोडिंग कैसे होगी, 0। साइलेंट के लिए 0, आइडल के लिए 0। और स्टेशन नंबर 4 वांट्स टू ट्रांसमिट 1, तो 1 के लिए एनकोडिंग है +1, तो एनकोडिंग हो गई +1। तो यहां पे हमने डेटा को एनकोड कर दिया अकॉर्डिंगली। 0 को एनकोड कर दिया -1 में, साइलेंस को एनकोड कर दिया, आइडल को एनकोड कर दिया 0 में, और 1 को एनकोड कर दिया +1 में। तो लीजिए, अब 2 काम हो चुके हैं। पहला काम यूनिक कोड असाइन हो चुके हैं, दूसरा काम जो ट्रांसमिशन के लिए डेटा था वो एनकोड हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, वी विल मल्टीप्लाई द डेटा विद द कोड। तो डेटा है -1, तो -1 को मल्टीप्लाई करेंगे कोड के साथ, -1 इंटू +1 -1, -1 इंटू +1 -1, -1 इंटू +1 -1, -1 इंटू +1 -1। तो ये हो गया D इंटू सी, मतलब प्रोडक्ट हो गया डेटा 1 और कोड 1 का। इसी तरह से हम प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे स्टेशन नंबर 2 के डेटा और यूनिक कोड के लिए। तो फिर से यूनिक कोड है जी +1 -1 +1 -1, और डेटा इनकोडेड है -1, -1 इंटू +1 -1, -1 इंटू माइनस 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 प्लस हो गए +1, -1 इंटू +1 -1, -1 इंटू -1 माइनस माइनस प्लस +1। तो ये एनकोडिंग हो गई स्टेशन नंबर 2 के लिए, प्रोडक्ट ऑफ डेटा 2 एंड यूनिक कोड 2। इसी तरह से 3 के लिए, क्योंकि 3 के लिए हमें 0 से मल्टीप्लाई करना है, तो 0 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आएगा 0। तो अब आ गया स्टेशन 4। स्टेशन 4 के पास है 1, 1 इंटू 1 +1, 1 इंटू -1 -1, 1 इंटू -1 -1, +1 इंटू +1 1। तो ये सभी का आ गया प्रोडक्ट डेटा और कोड का। तो अब इनको प्लस कर देते हैं। तो सबसे पहले पहली बिट D1 C1 की पहली बिट है -1, -1 प्लस -1 -2,
-2 प्लस 0, -2 -2 प्लस 1, तो -2 प्लस 1, आंसर इज -1। ये हो गया पहला बिट। तो चलिए आप दूसरे बिट की तरफ मूव करते हैं। द सेकेंड बिट इज -1, -1 प्लस 1 0, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस -1 एंड द आंसर इज -1। अब तीसरी बिट को एनकोड करते हैं। -1 प्लस -1, -2, -2 प्लस 0, -2, और तीसरी बिट है यहां पे -1, -2 प्लस -1, -3, और फोर्थ बिट आ गई -1 प्लस 1 0, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1। तो लीजिए जी, दिस विल बी ट्रांसमिटेड। तो जी अब पॉइंट ये आ गया, एनकोडिंग तो हमने कर दी। नाउ अब डीकोडिंग कैसे होगी? डीकोडिंग मींस, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो चलिए अब डीकोडिंग का डिस्कस करते हैं कि डीकोडिंग कैसे होगी। नाउ फॉर डीकोडिंग हम ये मान के चलते हैं कि दिस स्टेशन 4 ट्रांसमिटेड दिस डेटा फॉर स्टेशन नंबर 3। अब 4 ने कौन सा डेटा भेजा है? उसने अपना डेटा किसके लिए भेजा है? 3 के लिए। अब 3 को क्या रिसीव हुआ? ऑब्वियसली उसको ये रिसीव होगा। तो स्टेशन नंबर 3 को रिसीव हुआ, क्या रिसीव हुआ? दिस वन, -1, -1, -3 एंड +1। तो ऑब्वियसली ये एनकोडेड फॉर्म है, ये डेटा नहीं है। तो स्टेशन 3 कैसे डीकोड करेगा कि उसके लिए क्या ट्रांसमिशन हुई है? तो व्हाट द स्टेशन 3 विल डू, इट विल मल्टीप्लाई द रिसीव्ड डेटा विद द सेंडिंग स्टेशन। अब जो दिस इज द रिसीव्ड डेटा, तो ये रिसीव्ड डेटा है, और डेटा 3 के लिए भेजा किसने है? 4 ने भेजा है मान लो। तो अब क्या करेगा, स्टेशन नंबर 3 विल मल्टीप्लाई द रिसीव्ड डेटा विद यूनिक कोड ऑफ द सेंडिंग स्टेशन। सेंडिंग स्टेशन कौन सा है? 4। तो स्टेशन नंबर 3 क्या करेगा, रिसीव्ड डेटा को मल्टीप्लाई कर देगा विद द यूनिक कोड ऑफ सेंडिंग स्टेशन, दैट इज C4। और जो इसका आंसर आएगा, इस मल्टीप्लिकेशन का जो आंसर आएगा, उसको वो डिवाइड कर देगा विद टोटल नंबर ऑफ बिट्स ऑफ यूनिक कोड। मींस के यूनिक कोड में टोटल कितनी बिट्स हैं? तो टोटल कितनी बिट्स हैं? 4। तो इसका जो आंसर आएगा वो 4 के साथ जो उसको डिवाइड कर देगा, और जो आंसर होगा दैट विल बी द डेटा फॉर स्टेशन नंबर 3 सेंट बाय स्टेशन नंबर 4। तो चलिए जी आप इसको डीकोड कर लेते हैं। तो डेटा रिसीव हुआ -1, -1, दिस वन, यही डेटा रिसीव हुआ ना, -1, -1, -3 +1। और डेटा भेजा किसने है 3 के लिए? 4 ने। तो 4 का यूनिक कोड क्या है? +1, -1, -1, +1। तो चलिए अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 -1 इंटू +1, -1, -1 इंटू -1, +1, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया। -3 इंटू -1, +3, +1 इंटू +1, 1। तो इसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ बिट्स के साथ, 4। सो -1 +1 0, तो 0 + 3 3, 3 + 1 4, 4 डिवाइडेड बाय 4, सो आंसर इज 1। तो इट मींस स्टेशन 3 के लिए जो डेटा भेजा गया है वो क्या डेटा भेजा गया है? 1। और भेजा किसने है? मशीन नंबर, स्टेशन नंबर 4 ने। और आप देख सकते हो कि स्टेशन नंबर 4 ने क्या भेजा था? उसने भेजा था 1, +1। तो +1 किसके लिए है? तो ऑब्वियसली 1, ये जो आया +1, और +1 है 1 के लिए।
तो ऑब्वियसली तो 4 ने मशीन नंबर 3 के लिए, स्टेशन नंबर 4 ने स्टेशन नंबर 3 के लिए क्या भेजा था? 1। तो हमने कैसे डी कोड किया? रिसीव्ड डेटा को मल्टीप्लाई कर दिया विद द यूनिक कोड ऑफ द सेंडिंग स्टेशन और फिर उसके आंसर को डिवाइड कर दिया टोटल नंबर ऑफ बिट्स इन यूनिक कोड। अगर 8 होती यूनिक कोड में यहाँ पे बिट लाइक दिस, तो फिर हमने डिवाइड करना था 8 के साथ। सो दिस इज हाउ योर डेटा विल बी decoded in the CDMA। आई होप आपको एनकोडिंग क्लियर हुई। एनकोडिंग का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। आप डेटा को, एनकोडेड बिट को मल्टीप्लाई कर दोगे कोड के साथ, हर स्टेशन के लिए ऐसा कर दोगे और हर स्टेशन के लिए ऐसा करने के बाद आंसर को आप ऐड कर दोगे। मींस D2 इंटू C1 प्लस मतलब D1 इंटू C1 प्लस D2 इंटू C2 प्लस D3 इंटू C3 एंड सो ऑन। तो जो आंसर आएगा वो ट्रांसमिट हो जाएगा। डीकोडिंग कैसे होगी? रिसीव्ड डेटा को जो स्टेशन है वो मल्टीप्लाई कर देगा विद द यूनिक कोड ऑफ सेंडिंग स्टेशन और जो उसका आंसर आएगा उसको डिवाइड कर देगा विद टोटल नंबर ऑफ बिट्स इन द यूनिक कोड और जो आंसर आएगा दैट विल बी द डिकोडेड डेटा लाइक दिस। सो आई होप आपको ये कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस क्लियर हुआ। तो आज हमने डिस्कस करा चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल्स और चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल्स में हमने सबसे पहले डिस्कस किया फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। एफडीएमए में हमने डिवाइड कर दी टोटल फ्रीक्वेंसी को अमंग मल्टीपल कनेक्टेड यूजर्स। टीडीएमए में हमने क्या किया? फ्रीक्वेंसी को डिवाइड नहीं किया, टाइम को डिवाइड कर दिया अमंग ऑल द यूजर्स। और कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस में हमने एक यूनिक कोड असाइन कर दिया हर कंप्यूटर को। और उसके बाद हमने डिस्कस किया हाउ टू एनकोड द डेटा और उसके बाद हमने डिस्कस किया हाउ टू डिकोड द डेटा। तो आई होप आपको आज चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ।